I'm here because I love to interact. Again, a very warm welcome to all of you in this new year, 2022. I'm CA RK Gupta and I'm here because I love to interact with people. My website address is carkgupta.com. You can get a lot of professional information here. And my email ID is also here if you wish to interact with me. So first of all, a big thanks to GIPA Professional Association. The topic for today's discussion is CA Amendment Bill. Although this bill seeks to amend all the three acts, CA, CS and CWA, but most of the provisions are similar in nature and we are more concerned being a CA with the amendments which are proposed in Chartered Accountants Act. Let us have a quick look at the main highlights. What are the main highlights of this CA Amendment Bill? First of all, it seeks to alter the disciplinary mechanism. Disciplinary mechanism, as we know, is in the control of ICAI. But now they want to change it. They want to segregate the functions of the institute into two parts. One is the administrative part, another is the disciplinary mechanism. So disciplinary mechanism that will be taken up by the central government, basically. Practicing firms are also being brought into the scope of disciplinary mechanism. As we know, as of now, only practicing members, they are brought into the scope of disciplinary mechanism, but no action is taken against the practicing firms. But through this amendment bill, action can be taken on the practicing firms as well, besides the practicing member who is at fault. President, who was till now a CEO, Chief Executive Authority, but now he will no longer be the Chief Executive Authority. He is being renamed as head of the institute. The functions of the CEO shall henceforth be performed by the secretary, who has been given wider powers under the amendment bill. So secretary will be the Chief Executive Authority or CEO. So section 15B talks of this. Director discipline is being made stronger. Disciplinary mechanism is being stronger by including two joint director discipline along with director discipline. And the procedure regarding appointment, reappointment, termination of the secretary, director discipline and joint director discipline, they shall be made with the prior approval of the central government. Till now, all these functions were being performed by the institute and through the president of the institute. But now, president is no longer the Chief Executive Authority. He is the head of the institute. Auditor of institute shall be from the panel maintained by CAG, because the auditee, ICAI is the auditee in case of audit of its accounts. So they want to separate the auditee from the auditor. So auditor shall be independent, more independent, because it shall be selected from a panel maintained by the CAG of CA firms. Regarding elections, there shall be now 2 terms of 4 years each for elected representatives. अभी तक क्या होता था? अभी 3 टर्म्स होती थी, 3-3 साल की, तो 9 साल के लिए होते थे. अब क्या होगा? अब 2 टर्म्स होंगी 4 साल की. उसके लिए उन्होंने प्रोविजन दिया है कि जो अभी एक बार इलेक्ट हो चुके हैं वो 2 बार और इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि 4 साल के 2 टर्म हो गए तो इसका मतलब 8 साल हो गए. अभी जो एक बार रह चुका है सेंट्रल काउंसिल मेंबर, उसके 3 साल हुए. अब उसको अगर एक टर्म और अलॉट करते तो 7 साल होते, तो कम हो जाता उसका पीरियड. तो इन्होंने क्या किया कि जो एक बार रह चुका है वो 2 बार और लड़ सकता है. और ये प्रोविजन इफेक्टिव कब होगा? जब ये अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा तब से. ठीक है. जो 2 बार लड़ चुका है ऑलरेडी, जो 2 बार सेंट्रल काउंसिल मेंबर रह चुका है, वो एक बार और लड़ सकता है.
जो 3 बार रह चुका वो नहीं लड़ सकता, ये है इसमें। एक इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रोविजन इसमें रखा है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इट विल बी हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड होगा। और जो तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, आईसीआई, आईसीएसआई और आईसीडब्ल्यूआई, इन तीनों के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उस कमेटी के मेंबर। और ये कमेटी जो है सारा कोऑर्डिनेशन देखेगी, सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का वर्क ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू होगा। एक व्यू पॉइंट इसमें ये भी है क्योंकि अब मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म्स आने वाली है, तो जब मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म्स आएंगी तो उस केस में कोऑर्डिनेशन की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो तीनों इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू उसका जो रेगुलेशन है या प्रोफेशन की जो डेवलपमेंट है उसका काम देखें। जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज उनको और ज्यादा पावर दे दी गई। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज कोई रिपोर्ट देती है इंस्टीट्यूट को, डायरेक्टर डिसिप्लिन को, तो उस केस में हमारे यहाँ क्या है कि ड्यूअल प्रोसीजर है। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉर्म ए प्राइमा फेसाई ओपिनियन कि भाई ये बंदा गिल्टी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में उस पर फिर जो है प्रोसीडिंग चलती है, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग। अब यहाँ क्या होगा कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने बोल दिया कि ये प्रोफेशनल गिल्टी है ऑफ मिसकंडक्ट, तो उस केस में ये प्राइमा फेसाई ओपिनियन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस में उसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए एसएफआईओ है या कोई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज कुछ ऐसा फाइंड करती हैं, तो उस केस में ये जो 2 स्टेजेस थी, सबसे पहले प्रिलिमिनरी ओपिनियन फॉर्म करना, उसके बाद में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करना, तो वो पहले वाला स्टेप इसमें खत्म हो जाए। अभी तक क्या होता था, हर साल हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, हमें मालूम ही है। वही डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड होते हैं, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के हेड होते हैं। अब प्रेसिडेंट शैल नो लॉन्गर बी द चेयरपर्सन ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। तो प्रेसिडेंट अब हेड नहीं रहेंगे इसमें। प्रेसिडेंट का काम क्या रहेगा, प्रेसिडेंट का काम रहेगा काउंसिल की मीटिंग्स को कंडक्ट करना और काउंसिल के थ्रू वर्क करना, ठीक है। तो ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो जाएंगे। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाला काम था वो उनके पास नहीं रहेगा। इसलिए एक और बात भी होती थी कि डिसिप्लिनरी कमेटी जैसे जैसे प्रेसिडेंट चेंज होता था तो हर बार डिसिप्लिनरी कमेटी बदल जाती थी। तो डिसिप्लिनरी कमेटी बदलने से क्या होता, उसके मेंबर्स बदल जाते थे। मान लीजिए एक प्रोसीडिंग कोई चल रही है, अब उसकी हियरिंग पहले चल रही है, तो उसकी हियरिंग में क्या होता था, एक स्टेज तक उन्होंने हियरिंग कर ली, अब नए मेंबर्स आ गए तो उससे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता। अब इन्होंने कह दिया ये सिस्टम ही खत्म कर दो, इसको चेयरपर्सन से ही हटाओ, डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन से एक इंडिपेंडेंट पर्सन लाओ। तो उन्होंने कहा भाई चेयरपर्सन और जो 2 मेंबर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है, और ये नॉन सीएज होंगे, ठीक है। तो चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी वुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो मेजॉरिटी ऑफ नॉन सीएज हैं डीसी या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में, इसमें थोड़ा चैलेंज भी आएगा क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए अब हमें करना क्या होता है, देखिए ऐसा यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में मैटर आते हैं वो सारे शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 की इन्फ्रिंजमेंट के होते हैं। तो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा समझ सकता है। मान लीजिए कोई प्रोफेशनल मैटर का ओपिनियन है कि भाई वेदर ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, इसने अपना जो ओपिनियन प्रॉपरली दिया कि नहीं दिया, तो वो चीजें जब एक नॉन सीए जज करेगा तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट ऐसा होने वाला है कि जो चेयरपर्सन है और जो 2 मेंबर है डिसिप्लिनरी कमेटी के, ये गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो मेंबर ऑफ द कमेटी है, अभी तक क्या होता था, ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी इसके मेंबर भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते थे। अब इन्होंने कहा भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो मेंबर ऑफ द कमेटी हैं ये भी इलेक्टेड मेंबर होने जरूरी नहीं है। एक पैनल बनाएंगे वो एमिनेंट सीएस का, और ये पैनल बताएगा कौन, पैनल भी इंस्टीट्यूट ही बताएगा। तो एक पैनल बना लेंगे और उस पैनल में से जो मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी वो बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही हो। अगर हम पुरानी अपनी कमेटीज देखें इंस्टीट्यूट में तो सारी कमेटी में इलेक्टेड मेंबर्स ही भरे होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा कोई नहीं सीए होता, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा भाई एक पैनल बना दो एमिनेंट सीएस का, और वहां से लोग इलेक्टेड मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके अलावा
जो एनुअल एक्सरसाइज है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था, भाई हर साल प्रेसिडेंट नया बना, हर बार डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बनती थी, तो एनुअल एक्सरसाइज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ये स्टॉप हो गई। उन्होंने कहा ये जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है ना, इसको यहाँ से निकाल ही दो, प्रेसिडेंट की साइड से निकाल दो, ठीक है। उसके अलावा जो पनिशमेंट्स है, पनिशमेंट्स भी हार्शर पनिशमेंट्स हो गई हैं, 50 लाख तक की मॉनेटरी पेनल्टी भी है, तो मॉनेटरी पेनल्टी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है पहले से। और एक कॉन्सेप्ट इसमें नई आई है, एक तो पहले तो क्या होता था, इंस्टीट्यूट हमारा एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखता था, तो उन्होंने कहा कि भाई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अलावा एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स भी रखा जाए, और क्योंकि फर्म्स को भी वो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में लाना चाहते हैं। अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए कोई प्रोफेशनल गिल्टी है तो फर्म के ऊपर कुछ नहीं आ जाते, अब उन्होंने कहा कि भाई फर्म विल आल्सो बी गिल्टी, और अगर उस मेंबर को निकाल भी दिया गया, ही इज रिमूव्ड आल्सो, तो भी फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकता है। मे बी जो सत्यम वाला एपिसोड था उसकी वजह से हुआ हो, या कई बार क्या होता है कि वो सीए के अगेंस्ट ही एक्शन ले पाते थे, अभी किसी फर्म के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पाते थे, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि भाई मेंबर के अलावा आप फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हैं। और हार्शर पेनल्टीज है इन केस ऑफ रिकरिंग मिसकंडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए 5 साल के अंदर आपने दोबारा मिसकंडक्ट कर दिया, तो उस केस में हार्शर पनिशमेंट है, 50 लाख तक की पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट भी है। तो ये जो पेनल्टी प्रोविजंस वो भी काफी आ गए। आइए इसका एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। ये स्नैपशॉट का जो सोर्स है वो आर नारायण स्वामी जी हैं, ये ब्लूमबर्ग में छपा था क्विंट। तो चेंजेस जो प्रपोज्ड है, जो मैंने अभी तक डिस्कस की, मोटा मोटा क्या चेंजेस है, ठीक है। अब डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में क्या होता था, डिसिप्लिनरी जो जुरिस्डिक्शन थी वो थी सीएस के ऊपर, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन जो ले सकते थे, अभी तक क्या होता था सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर के अगेंस्ट ही ले सकते थे, अब ये एक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी हो सकता है, उसकी सीए फर्म पर भी हो सकता है। जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती थी उसका क्या ब्रेकअप होता था, इसमें प्रेसिडेंट रहता था या वाइस प्रेसिडेंट रहता था, चेयरपर्सन, ठीक है, प्लस 2 काउंसिल मेंबर रहते थे, प्लस 2 गवर्नमेंट नॉमिनी रहते थे। अभी क्या होगा, अभी उन्होंने कहा जी नॉन नॉन सी को तो चेयरमैन बनाएंगे, और 2 काउंसिल मेंबर रहेंगे और 3 गवर्नमेंट नॉमिनी रहेंगे। और जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता था, सीए या नॉन सीए चेयरपर्सन होता था, एक काउंसिल मेंबर होता था और एक गवर्नमेंट नॉमिनी होता था। अब इन्होंने जो सीए या नॉन सीए, इन्होंने कहा नॉन सीए को ही चेयरपर्सन बनाओ, ताकि ऑब्जेक्टिविटी, शायद वो ऑब्जेक्टिविटी लाना चाहते हैं कि भाई सीए की फेवर करेगा तो नॉन सीए को चेयरपर्सन लाओ, ठीक है, प्लस एक काउंसिल नॉमिनी लाओ, प्लस एक नॉन सीए गवर्नमेंट नॉमिनी लाओ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में, ठीक है। और जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है, डायरेक्टर डिसिप्लिन के अलावा 2 ज्वाइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन भी लगाओ। फिर जो काउंसिल है, काउंसिल का जो टेन्योर होता था जो इलेक्टेड मेंबर का, अभी तक 3 साल था, हमें मालूम ही है, अब ये टेन्योर 4 साल का होगा, और 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए कोई भी काउंसिल मेंबर रह सकता है, 2 टर्म 4-4 साल। और जो अभी चल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग काउंसिल मेंबर है, उनके लिए ये किया कि भाई अगर आप एक बार रह चुके हैं तो आप 2 बार और 4-4 साल के लिए रह सकते हैं, और अगर आप 2 बार रह चुके हैं तो 1 बार रह सकते हैं 4 साल के लिए। और ये प्रोविजन इफेक्टिव होगा जब से ये अमेंडमेंट एक्ट आएगा। अभी ये बिल की स्टेज में है, अभी ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास है, स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिकमेंडेशन जो नेक्स्ट बजट सेशन होगा उसमें देगी, ठीक है। तो हो सकता है अभी साल 6 महीने और भी लग सकते हैं, टाइम लगेगा इसको, क्योंकि तो लोअर हाउस में आया फिर अपर हाउस में जाएगा, टाइम लगेगा। फिर जो टर्म लिमिट है फॉर इलेक्टेड काउंसिल मेंबर, अभी तक 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी और अब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। फिर जो इसका गवर्नेंस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी चेंज किया गया। अभी तक जो रोल ऑफ प्रेसिडेंट था, इसका लिखा हुआ था कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल, अब इसका नाम कर दिया हेड ऑफ द काउंसिल, ही इज हेड ऑफ द काउंसिल, ठीक है। और जो रोल ऑफ सेक्रेटरी था पहले स्पेसिफाइड नहीं था, अब इन्होंने कह दिया कि भाई जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो सेक्रेटरी होगा, मतलब सेक्रेटरी की पावर काफी बढ़ा दी। और ये भी कहा कि भाई चाहे वो सेक्रेटरी हो या जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है या जो जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन है, इनकी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, ये सब विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ताकि ये इंडिपेंडेंट रहे। मतलब ऐसा होता था कि क्या होता है, जब मान लो काउंसिल के अधीन ही हो गए, ठीक है ना, तो वो तो एम्प्लॉय की तरह ही काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं कर सकते। अब इनमें क्या होगा, जब वो डायरेक्टर डिसिप्लिन प्रेसिडेंट के अंडर ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, ये है।
उसके अलावा ऑडिटर, पहले जो इंस्टीट्यूट के ऑडिटर होते थे, पहले कोई भी सीए इन प्रैक्टिस हो सकता था, अब इन्होंने कह दिया कि भाई फर्म ऑफ सीए होगी जो पैनल पे होगी सीएजी के, वही सिर्फ इसकी ऑडिटर बन सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 इंस्टीट्यूट हैं बेसिकली, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज। अभी पहले आज तक कोई ऐसा स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाएगी जिसको हेड करेगा सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और जो तीनों इंस्टीट्यूट है उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उस कमेटी के मेंबर हैं। ये है जी। तो बिल में एक खास बात आप ध्यान रखिए कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल इसका नाम है। तो तीनों ही एक्ट्स को अमेंड किया गया है इस बिल के थ्रू। ठीक। हालांकि तीनों एक्ट्स मोर और लेस सिमिलर हैं इन नेचर, जैसा हमारा एक्ट है वैसा ही ऑलमोस्ट दोनों एक्ट है। और ये तब कब आएगा, ये इफेक्टिव होगा जब नोटिफिकेशन होगा इन ऑफिशियल गजट। और डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट प्रोविजंस डिफरेंट डेट्स पर नोटिफाई हो। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो जो हमारा प्रियम्बल है और जो लॉन्ग टाइटल है उसमें लिखा गया है वर्ड रेगुलेशन। अब उस रेगुलेशन की बजाय वर्ड लिखा जाएगा रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक। उसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, ये कुछ डेफिनेशंस में चेंजेस है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, जैसे मैंने बताया, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में क्या रहेगा, डायरेक्टर डिसिप्लिन रहेगा और 2 जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन रहेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहेगा, वो हेड होगा, और तीनों इंस्टीट्यूट्स के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उस कमेटी के मेंबर। मेन प्रोविजंस में आपको दिखा देता हूं। अब जो हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस लिखी गई। एक तो ये था कि जहां जहां पर भी वर्ड रजिस्टर है उस रजिस्टर की बजाय वो ये कहता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रख लो। 2 तरह के रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूट को मेंटेन करने हैं, एक है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और एक है रजिस्टर ऑफ फर्म्स। ठीक है। जहां जहां पर भी हमारे एक्ट में वर्ड रजिस्टर है तो उस रजिस्टर को उन्होंने कह दिया कि भाई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है। कई जगह वर्ड लिखा हुआ था विदाउट इंडिया, तो विदाउट इंडिया को उन्होंने कहा कि भाई इट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। और कई जगह ये था मेंबरशिप में ना कुछ कंडीशंस है कि मेंबरशिप में ये लिखा है कि भाई मेंबरशिप फीस आप फिक्स कर सकते हो जो कि 3000 से एक्सीड नहीं होगी, और प्रोवाइजो दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो ये सब बातें उन्होंने खत्म कर दी। इसी तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ये लिखा होता है यहाँ 5000 विच शैल नॉट एक्सीड 5000, और एक प्रोवाइजो भी था, तो उस प्रोवाइजो को भी इन्होंने ओमिट कर दिया कि भाई ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन नट सेल ये है कि जो फीस है वो जितनी मर्जी आप फिक्स कर सकते हो। उन्होंने कहा भाई आप अपने रेगुलेटर हो तो आप अपने हिसाब से फीस फिक्स करो, कोई जरूरी नहीं है कि भाई 3000 या 5000 से ज्यादा या उससे अप्रूव ज्यादा के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने लिमिट भी खत्म कर दी इसमें, और जो प्रोवाइजो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेनी है, अगर इससे ज्यादा बढ़ानी है तो वो भी चीजें उन्होंने खत्म कर दी। ठीक है। जहां जहां पर वर्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था, क्योंकि मेंबर्स कई बार मेंबर्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है कि भाई मेंबर कौन नहीं बन सकता, तो वहां पर जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था उसकी बजाय उन्होंने अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट भी इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे जो आईबीसी आ चुका है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो उसमें जो डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। कई जगह वर्ड्स विदाउट इंडिया था, तो विदाउट इंडिया की बजाय आउटसाइड इंडिया था। इसी तरह से वर्ड ट्रांसपोर्टेशन भी था, क्योंकि हमें मालूम है ये बड़ा पुराना एक्ट है 1949 का, तो वहां पर क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे तड़ी पार समझ लो आप। ठीक है। भाई किसी आदमी को काला पानी दे दो, जैसे वहां पर भेज दिया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी वो रिडंडेंट हो चुका है, तो वो उन्होंने हटा दिया। ठीक है। 3 साल जो काउंसिल का टर्म होता था उसकी जगह 4 साल हो गया,
और जो 6 इयर्स होता था 6 इयर्स के बजाय 8 इयर्स हो गया। अब यहाँ जो वर्ड पर्सन था, पर्सन के बजाय मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट और एनी पार्टनर ऑफ ए फर्म, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। ये मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ इन नटशेल। तो पर्सन में क्या था, पर्सन की बजाय उन्होंने कहा मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट या एनी पार्टनर ऑफ ए फर्म। अब आप देखिए कि एनी पार्टनर ऑफ ए फर्म लिखा। एनी पार्टनर ऑफ ए फर्म का मतलब क्या है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म है, उस केस में कोई जरूरी नहीं ना कि हमारे इंस्टीट्यूट का ही कोई मेंबर हो। भाई हम एमडीपी बना सकते हैं। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म होगी उसमें सीए भी होगा, सीएस भी होगा, आईसीडब्ल्यू भी होगा। तो ये जो पार्टनर ऑफ अ फर्म है, अगर मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है तो पर्सन के बजाय फिर वहां पर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट या एनी पार्टनर। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है। सेक्शन 9 के बाद में 9A इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल ऑफ ईच ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। इसका काम क्या होगा, डेवलपमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द प्रोफेशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो तीनों प्रोफेशन के डेवलपमेंट के लिए और उनके हार्मोनाइजेशन के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। और ये कमेटी जो है इट शैल बी, इसका चेयरपर्सन कौन होगा, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी इन एवरी क्वार्टर ऑफ ए ईयर, मतलब एक क्वार्टर में एक मीटिंग करना जरूरी है, शैल बी हेल्ड लिखा है, ठीक है। एंड द कमिटी शैल बी रिस्पांसिबल फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस असाइन्ड टू ईच इंस्टीट्यूशन। तो इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेन काम ये रहेगा, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस असाइन्ड टू ईच इंस्टीट्यूट। और ये क्या क्या काम करेगी, एक तो इट विल एंश्योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड वर्क्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब ये जो कमेटी बनाने का जो प्रक्रिया है, इससे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माइंड में ये भी है कि इन तीनों इंस्टीट्यूट्स को मर्ज करके किसी ना किसी स्टेज पर वो एक इंस्टीट्यूट बना देंगे अल्टीमेटली, आज नहीं तो और 2-4 साल, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या करेगी, इट विल एंश्योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड वर्क्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। It will focus on the coordination and collaboration among the professions to make the profession more effective and robust. It will assign the cross-disciplinary regulatory mechanisms for interprofessional development. ये एक important concept है। ये क्या कहता है कि क्रॉस डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। अगर हम लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी जो पार्टनरशिप फर्म की जो गाइडलाइंस पढ़ी हो, तो उसमें क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि चाहे आपने एमडीपी बना ली, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म, लेकिन आप जिस भी इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं वही आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यह बात कर रहा है अलाइनमेंट ऑफ क्रॉस डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, क्योंकि आपकी फर्म में डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग हैं, सीए भी है, सीएस भी है, आईसीडब्ल्यू भी है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो क्रॉस डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसके लिए भी आप ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसा काम करेगी कि ये अलाइन हो जाए सारे आपस में। इट विल मेक रिकमेंडेशंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू रेगुलेटरी पॉलिसीज फॉर द प्रोफेशंस and perform such other functions incidental to clauses 1 to 4 above। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम रहेगा, ठीक। सेक्शन 10 में ये कि जो पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती थी इलेक्शन की, उसके बजाय 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। उसके बाद में ये वही बात करता है कि जो भी मेंबर है जिसके पास पहले से ही वो मेंबर है, ठीक है ना, जो एक बार रह चुका है वो 2 बार और हो सकता है, ठीक है, जो 2 बार रह चुका है वो 1 बार हो सकता है, बस यही इतना ही लिखा है। Who immediately at the commencement of the Amendment Act has held office as member for 2 terms, ठीक है, जिसके पास 2 टर्म पहले ही रह चुका है और is holding office for the second term of 3 years shall be eligible to contest for one more term of 4 years। 2 बार रह चुके हो तो 1 बार और लड़ सकते हो, अगर आप 1 बार रह चुके हो तो 2 बार लड़ सकते हो। ये जो प्रेसिडेंट है, सेक्शन 12 हमारा क्या बात करता है, सेक्शन 12 बात करता है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अभी तक हमारे एक्ट में लिखा हुआ था, तो उसकी बजाय इन्होंने कह दिया कि प्रेसिडेंट शैल बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द काउंसिल।
ठीक है। तो प्रेसिडेंट शेल प्रिजाइड एट द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल। तो प्रेसिडेंट की पावर्स इसमें काफी कम कर दी गई हैं, और जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है, जो जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन है, जो सेक्रेटरी है, उनकी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन वगैरह वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस पर होगी। ठीक है। प्रेसिडेंट का काम क्या है? काउंसिल की मीटिंग कराओ। तो प्रेसिडेंट शेल प्रिजाइड एट द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल and president and vice president shall exercise such powers and perform such duties and functions as may be prescribed. Acha, it shall be the duty of the president to ensure that the decisions taken by the council are implemented. तो जो भी काउंसिल ने डिसीजन लिए हैं वो इंप्लीमेंट हो, ये ड्यूटी प्रेसिडेंट की है। तो अगर कोई वैकेंसी हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा। ठीक है। रजिस्टर जहां जहां पर भी लिखा है उसके बजाय रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स हो जाएगा, और दो तरह के रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे, एक होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एक होगा रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स। ठीक है। 3 साल के बजाय 4 साल। अच्छा, ये फिर कुछ काम है इंस्टीट्यूट के। तो इंस्टीट्यूट के काम में क्या होगा? एक तो ये कहेगा प्रेस्क्राइबिंग ऑफ फीस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट। मतलब जो भी कैंडिडेट्स एनरोल हो रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, उनकी फीस आप ले सकते हो। ठीक है। ग्रांटिंग, और ये किसके काम है? ये काम है हमारे काउंसिल के। ग्रांटिंग और रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, रजिस्टर जहां पर लिखा है उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पढ़िए आप। एंड प्रेस्क्राइबिंग ऑफ गाइडलाइंस फॉर ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू इशू गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। ठीक है। अच्छा, इसके लिए अगर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आपने कोई मेमोरेंडम या कोई अरेंजमेंट साइन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से करना है। पहले क्या होता था, ये क्या करते थे, इंस्टीट्यूट वाले अपने आप ही कोई मेमोरेंडम या अरेंजमेंट साइन कर सकते थे। तो अगर आपने किसी फॉरेन एजेंसी, फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन एजेंसी के साथ कोई भी काम करना है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर सेक्शन 15A ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 15B, क्योंकि जो जो नए सेक्शंस आ गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो 15B इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 15B में ये क्या कहा, बेसिकली अब इंस्टीट्यूट के पास काम रह गया एग्जामिनेशन का, और मेंबर्स की जो है फीस वगैरह कलेक्ट करो, जितनी मर्जी कलेक्ट करो, ये काम रह गया इंस्टीट्यूट का। जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है वो यहाँ से निकाल दिया है। तो फंक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल इंक्लूड the examination of candidates for enrollment. ठीक है। Regulation of the engagement and training of articled and audit assistants, maintenance and publication of a register of persons qualified to practice, ये सारे इनके काम है। Maintenance and publication of register of firms, तो दोनों रजिस्टर आप बनाओगे। Collection of fees from members, examinees and other persons, तो इसमें collection and levy था तो word collection रख दिया इन्होंने। Subject to the orders of the appropriate authority under this act, the removal of names from the register of members and firms and the restoration of names to the register of members and firms which have been removed. Library, publication of books and periodicals relating to accountancy, conduct of elections, granting or refusal of certificate of practice as per guidelines issued by the council. तो ये मेन काम इनके हैं। ठीक है। अब जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 में क्या कहता है? सेक्शन 16 भी काउंसिल के फंक्शंस की बात करता है। तो ये इन्होंने फॉर सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 नया 16 का सबसेक्शन 1 जो है वो चेंज कर दिया। इन्होंने कह दिया, जैसे पहले वहां क्या होता था, पहले ये था कि चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता था कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन अब इन्होंने कहा कि फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज द काउंसिल शैल अपॉइंट ए सेक्रेटरी who will carry out administrative functions of the institute as its chief executive officer. तो सीईओ कौन बन गया? सेक्रेटरी बन गया। एक जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन बन गया, और जॉइंट डायरेक्टर्स दे रखा तो 2 जॉइंट डायरेक्टर्स डिसिप्लिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम नहीं होंगे, डायरेक्टर डिसिप्लिन होगा और 2 जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन होंगे to perform such functions as are assigned to them under this act and the rules and regulations provided that, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है,
प्रोवाइडेड दैट नो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन। तो ये जो पावर्स थी ये सारी पहले इंस्टीट्यूट के पास पावर थी, अब ये पावर यहाँ से लेकर के इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दी कि भाई कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई भी रीअपॉइंटमेंट, कोई भी टर्मिनेशन डायरेक्टर डिसिप्लिन की या जॉइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन की shall have effect unless such appointment, reappointment or termination of appointment is made with the previous approval of the central government। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर काउंसिल किसी को रिमूव करना चाहती है या अपॉइंट करना चाहती है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मालूम ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी प्रोसेस चलती है ना, तो नॉर्मली जो सेक्रेटरी इसका मतलब सारी पावर जो है सेक्रेटरी के पास चलेगी, गवर्नमेंट के पास चलेगी, समझ लीजिए। अभी तक क्या होता था, ये सारी पावर जो है हमारे इंस्टीट्यूट के पास ही होती थी, बार का कोई रोल नहीं था इसमें। लेकिन अब प्रेसिडेंट के पर भी कतर दिए इन्होंने और वो जो सारी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली। इन सबसेक्शन 2 फॉर क्लॉज सी द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस। अब वो कहने लगा, पहले क्या था, यहाँ पर था अपॉइंटमेंट, पावर्स एंड ड्यूटीज, पहले वर्ड ये था। अब इन्होंने इसको ऐड कर दिया इसमें प्रेस्क्राइब द मैनर, मतलब प्रोसीजर ये बना सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले, काउंसिल वाले। पहले यहाँ ये वर्ड जो शुरू होता था ना क्लॉज सी, ये अपॉइंटमेंट से शुरू होता था, अब अपॉइंटमेंट की बजाय इन्होंने कर दिया प्रेस्क्राइब द मैनर, मतलब तरीका आप बता दो। ठीक है, काउंसिल तरीका बता दे भाई इस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, वो उसमें क्या है भाई इतनी क्वालिफिकेशन होगी, ये होगा, ये सब चीजें। लेकिन अप्रूवल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेस्क्राइब द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, देयर सैलरीज, फीस, अलाउंसेस। पहले ये सारा काम इंस्टीट्यूट ही करता था। सेक्शन 18 में क्या किया? सेक्शन 18 में ये एनुअल अकाउंट्स भी जो थे इनके भी कई बार बहुत सारी क्वालिफिकेशंस भी आती थी। अब ये चीजें बहुत सारी पब्लिक फोरम में भी जाती हैं। आजकल क्या है कि हर लोग फेसबुक पर भी लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे भी चलती हैं सब चीजें। तो बहुत सारी चीजें जो इंस्टीट्यूट की हैं वो भी ओपन होती रहती हैं। तो अब इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, आप ऑडिटी हो, ऑडिटर तो सिलेक्ट नहीं कर सकता ना अपने आप। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो एनुअल अकाउंट्स है काउंसिल के, दे शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड and subject to audit by a firm of chartered accountants to be appointed annually by the council from the panel of auditors maintained by the CAG। तो CAG का जो पैनल है, CAG के पैनल में से आप अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई किसी भी फर्म को आपने कर दिया और एनुअल अपॉइंटमेंट होनी है, ये भी बात है। Provided that a firm shall not be eligible for appointment as an auditor under this subsection if any of its partners is or has been a member of the council during the last 4 years। तो जिस फर्म की अपॉइंटमेंट होनी उसका कोई भी पार्टनर ना तो जब अपॉइंटमेंट हो रही है तब और ना ही पिछले 4 सालों में अगर वो काउंसिल का मेंबर रह चुका तो उस फर्म की अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकती। Provided further that in the event it is brought to the notice of the council that the accounts of the council do not represent a true and fair view of its finances, then the council may itself cause a special audit to be conducted। ठीक है, अब इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिए, वो क्या कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल। अब काउंसिल के नोटिस में लाएगा कौन? काउंसिल नोटिस में नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी या कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज लाएगी। ठीक है, काउंसिल खुद तो अपने नोटिस में नहीं लाएगी ना, वो कहता है इट इज ब्रॉट। तो ब्रॉट जो है एक आउटसाइड एक्शन है, इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल दैट द अकाउंट्स ऑफ द काउंसिल डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर वो कहता है भाई ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है तो आप स्पेशल ऑडिट करो। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ सच इंफॉर्मेशन दैट द अकाउंट्स ऑफ द काउंसिल डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स फाइनेंसेस is sent to the council by the central government, then the council may wherever appropriate cause a special audit or take such other action as it considers necessary and shall furnish an action taken report thereon to the central government। अब ये कहता है कि जो एक्शन रिपोर्ट है, आपको हमने बता दिया भाई आपके अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं, तो आपको क्या करना है? एक्शन टेकन रिपोर्ट। और एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं, वो कहता है डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन रिपोर्ट। वो जो आगे आएगा कि डिटेल्स भी देनी है आपने कि एक्शन टेकन के अलावा आपको यू हैव टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द एक्शन टेकन।
कि उस पर आपने क्या एक्शन लिया, आप स्पेशल ऑडिट करवाओ। ये सेक्शन 19 फिर रजिस्टर, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स वो सेम ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता था, अभी तक क्या होता था, ये जो हमारा सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी रहती थी। अब उसके अलावा उन्होंने क्लॉज सी इंसर्ट कर दी। उस क्लॉज सी में क्या कहा, उसमें ये कहा कि भाई ये चीज और लिखो आप रजिस्टर के अंदर ही, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ये बात और लिखो। क्या लिखो, वेदर एनी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट इज पेंडिंग और एनी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड अगेंस्ट हिम अंडर चैप्टर 5 इंक्लूडिंग डिटेल्स देयरऑफ इफ, ठीक है। अगर कोई भी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, क्या मतलब, आपको गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई इस आदमी के अगेंस्ट में एक्शन लो, तो वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन हो गई। कंप्लेंट पेंडिंग है, तो इस जो पेंडिंग कंप्लेंट है या एनी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड, इसकी भी एंट्री आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में करो। ये पहले मेंबर में नहीं होती थी। रजिस्टर ऑफ मेंबर तो साफ सुथरा रहता था, ठीक है ना भाई, या तो उसको हटा ही देंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर से। अब क्या है, वो कहते हैं इसकी भी एंट्री इसके अंदर करो। अगर कोई भी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट पेंडिंग है या कोई पेनल्टी इंपोज की है अंडर चैप्टर 5 इंक्लूडिंग डिटेल्स देयरऑफ, तो ये भी एंट्री करो। कहां पर करो, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 19। ये तो फिर सेम ही है। अच्छा, अब ये चैप्टर 4A आ गया। चैप्टर 4 के बाद में ये नया चैप्टर लगा दिया, चैप्टर 4A। पहले चैप्टर 4A नहीं था। तो चैप्टर 4A में क्या कहा कि रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो पहले हमारे पास क्या होता था, सिर्फ एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता था। अब इन्होंने कह दिया रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर ऑफ फर्म्स भी आपको बनाना, और डिसिप्लिन मैकेनिज्म भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में तो हो ही सकता है, मेंबर के अगेंस्ट में, फर्म के अगेंस्ट में भी हो सकता है, जो पहले नहीं होता था। Every firm shall be registered with the institute on an application made to the council by any partner or owner of a firm in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed. तो ये एप्लीकेशन तो अभी भी खैर होती है, क्योंकि आपने फर्म नेम के लिए जब अप्लाई करते हो तो आपको फर्म नेम FRN नंबर मिलता है, लेकिन कोई ऐसा रजिस्टर ऑफ फर्म से मेंटेन होता। तो अब इन्होंने कहा कि भाई आप रजिस्टर ऑफ फर्म से भी मेंटेन करो, ठीक है। Provided that the council may refuse to register a firm if the name of such firm is identical or similar to the name of any other firm already registered, or the name is in use by any firm within or outside India, or in the opinion of the council, registration of the firm is desirable, undesirable. अब आप ये देखो, इसमें क्या खास बात आ गई। वो कहता है कि any other firm already registered or the name is in use by any firm within or outside India। अगर आउटसाइड इंडिया में भी कोई फर्म है उसी नाम की, तो फिर आपको वो नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। द काउंसिल शैल मेंटेन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ए रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जहां पर वर्ड रजिस्टर था, उन्होंने कहा रजिस्टर को वर्ड समझो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और इसके अलावा एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स और बनाओ, ठीक है। और रजिस्टर ऑफ फर्म्स में क्या आपके ये रहेंगे, ये भी आपका particulars रहेंगे। Register of firms shall include such particulars about the firm, including details of pendency of any actionable information or complaint or imposition of penalty against it under chapter 5 in such form and at such intervals as may be prescribed। तो आपका कोई भी पेंडिंग है मैटर फर्म के अगेंस्ट में, क्योंकि अब आप फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकता है इंडिविजुअल के अलावा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पेंडेंसी है, अगर कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है या कोई कंप्लेंट है या इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी है जो कि फर्म के अगेंस्ट में लगाई गई है, तो उसको भी आप उसके भी पर्टिकुलर्स रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में दोगे, ठीक है। The council shall cause to be published in such manner as may be prescribed a list of firms registered with the institute as on the first day of April of each year। तो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल पे वो पब्लिश करेंगे। ये नेचुरली ऑडिट वगैरह के पर्पज से होता है, CAG वगैरह के पर्पज से, ठीक है ना। पहले भी बनाते ही, वो तो आपके पास भी जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स पे जो पर्टिकुलर्स है वो सारे आ जाते हैं, तो ये सारे ये आपको पब्लिश करने हैं, ठीक है। The council shall remove from the register of firms the name of any firm। अब तो आप फर्म का नाम भी रिमूव कर सकते हो, which is dissolved or liquidated
or from which a request has been received to that effect, or is declared insolvent or bankrupt, अगर फर्म आपकी आईबीसी में आ गई, या which has been debarred from undertaking any activity or activities relating to the profession of a chartered accountant in practice under any law for the time being in force or by any competent court, or in respect of which an order for removal has been passed under this act. तो फर्म नेम भी आप रिमूव वहां से हो सकता है। तो पहले क्या होता था, अभी तक मेंबर के अगेंस्ट में एक्शन होता था, अब फर्म के अगेंस्ट में भी सारे एक्शन हो सकते हैं जो मेंबर के अगेंस्ट में होते थे। ठीक है। एनी फर्म aggrieved by the decision for refusal of registration may apply for review before the council within 1 month from the date of such refusal. किसी का नाम नहीं मिला तो वो रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो वो रिव्यू के बाद में जो डिसीजन अप्रोप्रिएट होगा वो लेंगे। ठीक है। अब सेक्शन 21 में देखते हैं कि 21 में क्या चेंज हुआ। 21 में ये चेंज हुआ है। पहला, द काउंसिल शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश ए डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। तो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट बनाएंगे, उसमें एक डायरेक्टर डिसिप्लिन रहेगा और कम से कम 2 ज्वाइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर्स वर्ड लिखा है। ठीक है ना। तो डायरेक्टर्स का मतलब 2 तो कम से कम होंगे ही, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। एक डायरेक्टर डिसिप्लिन रहेगा, एटलीस्ट 2 ज्वाइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन not below the rank of deputy secretary of the institute and such other employees appointed under section 16 for making investigation either suo moto। अभी तक क्या होता था कि जो एक्शन लेना है आपको 2500 रुपए का आप ड्राफ्ट लगाओ, ठीक है, उसके बाद में वो एक्शन लेते थे। नॉर्मली सो मोटो एक्शन नहीं लेते। तो अब इन्होंने कहा भाई सो मोटो भी एक्शन ले सकते हो या ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट इन सच फॉर्म अलोंग विद सच फीस एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है। तो पहले डायरेक्टर डिसिप्लिन होता था, अब इन्होंने दो जो ज्वाइंट डायरेक्टर डिसिप्लिन है वो और लगा दिए साथ में, और उनका भी क्या होगा, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी से कम के रैंक के नहीं होंगे। ठीक है। Within 30 days of receipt of an information or a complaint, the director discipline shall decide in such manner as may be specified whether a complaint or information is actionable or is liable to be closed as non-actionable। ठीक है। टाइम बाउंड भी कर दिया भाई, ऐसा नहीं, कई बार क्या होता था लटकाए जाते थे, नेताओं के अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन आ गई उसको लटकाते रहते थे। तो इन्होंने कह दिया भाई 30 दिन के अंदर जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट मिलती है तो जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है उसको डिसाइड करना है कि ये जो कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन है ये एक्शनेबल है या आप इसको नॉन एक्शनेबल मानते हो। 30 दिन के अंदर ये डिसीजन ले लो आप। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर डिसिप्लिन may call for additional information from the complainant or the informant। तो दोनों चीजें, कंप्लेंट पर भी एक्शन हो सकता है और इंफॉर्मेशन पर भी हो सकता है। ठीक है। एज द केस में बी बाय गिविंग 15 days टाइम बिफोर डिसाइडिंग वेदर द केस इज एक्शनेबल और नॉट। तो अगर आप जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है उसको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, टू जज वेदर इट इज एक्शनेबल और नॉट, तो उस केस में आप और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हो। किससे ले सकते हो, कंप्लेनेंट से या इन्फॉर्मेंट से। ठीक है। कि 15 दिन का टाइम उसको दे देंगे कि भैया 15 दिन में ये आप और इन्फॉर्मेशन हमें दो। पहला 30 दिन का टाइम हो गया, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 15 दिन का टाइम और ले लो, 45 डेज प्रोवाइडेड फॉर दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ द डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑन नॉन एक्शनेबल कंप्लेंट्स और इन्फॉर्मेशन शैल बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अब इनके ऊपर चला गया बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ये बोर्ड को चली जाएंगे विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसीट। ठीक है। 30 दिन के अंदर इन्होंने एक्शन लेना है। पहला, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो 15 दिन और मिल गए, और 60 दिन के अंदर, 60 दिन कहां से, 60 दिन के अंदर ऑफ इट्स रिसीट। ठीक है। जब भी कंप्लेंट मिली उसके 60 दिन के अंदर आपको बोर्ड को देना है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, जो भी आपने रिकमेंडेशन दी, एक्शनेबल है, नॉन एक्शनेबल है, जो भी है। ठीक है। ये सबमिट कर किसको करनी है आपने, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसीट, एंड द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन मे आफ्टर लुकिंग इनटू इट्स मेरिट्स रेफर सच कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर डिसिप्लिन फॉर कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड देखेगा कि इनटू मेरिट्स वो अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो उस केस में ये होगा। खास बात क्या है इसमें, खास बात ये है कि जो नॉन एक्शनेबल कंप्लेंट्स हैं ये भेजो आप बोर्ड के पास, सारी नहीं भेजनी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ द डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑन नॉन एक्शनेबल कंप्लेंट। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने डायरेक्टर डिसिप्लिन के ऊपर भी चेक लगा दिया कि भाई डायरेक्टर डिसिप्लिन कह दे यार ये तो नॉन एक्शनेबल रिपोर्ट है। अगर नॉन एक्शनेबल रिपोर्ट है तो आप बोर्ड को भेजो विद इन 60 डेज, और बोर्ड फिर उसको देखेगा, ठीक है, कि मेरिट्स क्या है कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन की, और बोर्ड डायरेक्टर डिसिप्लिन को कह सकता है कि भाई इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो आप, ठीक है। तो जो वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है नॉन एक्शनेबल कंप्लेंट्स या इन्फॉर्मेशन, मतलब डबल चेक हो गया। ये नहीं कि डायरेक्टर डिसिप्लिन अपने आप में ही फैसला ले ले, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन अगर ये समझता है कि भाई ये नॉन एक्शनेबल कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन है तो बोर्ड को भेजिए 60 दिन के अंदर, ठीक है, और बोर्ड फिर उसको देखेगा, और बोर्ड चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकता है डायरेक्टर डिसिप्लिन को। आगे चलते हैं। While making investigation into a case which is found to be actionable, अब मान लो एक्शनेबल है, भाई दो ही बातें हो गई, या तो एक्शनेबल है या नॉन एक्शनेबल है। अगर नॉन एक्शनेबल है तो बोर्ड को भेज दिया 60 दिन के अंदर। अगर मान लो एक्शनेबल है, अब उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन जो है इट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर ऑफ द फर्म, चाहे वो मेंबर के अगेंस्ट में भी हो सकती है और फर्म के अगेंस्ट में भी हो सकती है। अभी तक तो क्या होता था, फर्म के अगेंस्ट में एक्शन ही नहीं होता था, मेंबर के अगेंस्ट में ही एक्शन होता था। अगर मेंबर किसी फर्म का मेंबर कोई गिल्टी है तो उस मेंबर का नाम रिमूव कर देते थे, फर्म चलती रहती थी। अब इन्होंने कह दिया भाई मेंबर के अगेंस्ट में भी हो सकता है और फर्म के अगेंस्ट में भी हो सकता है। तो while making investigation into a case which is found to be actionable, the director discipline shall give an opportunity to the member or the firm as the case may be to submit a written statement within 21 days. तो एक किस्म से इन्होंने टाइमलाइंस प्रेस्क्राइब कर दी कि भाई 21 दिन के अंदर जो है आप जो मेंबर या फर्म है वो अपनी एक रिटन स्टेटमेंट देगा which may further be extended by another 21 days for reasons to be recorded in writing, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर इसको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देनी है। किसको देनी है? पहली बात तो अगर देखो, अगर नॉन एक्शनेबल है वो तो वहीं खत्म हो गई, ठीक है। नॉन एक्शनेबल का डायरेक्टर डिसिप्लिन ने क्या किया, बोर्ड को भेज दिया, बोर्ड भी समझता है मान लो नॉन एक्शनेबल है, खत्म वही। बोर्ड अगर समझता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लो एक्शनेबल है, एक्शनेबल पे क्या कहोगे, डायरेक्टर डिसिप्लिन जो है मेंबर या फर्म को कहेगा भाई आप 21 दिन के अंदर अपना एक रिटर्न स्टेटमेंट दो, ठीक है। और इसमें 21 दिन और एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि भाई क्यों एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। अपॉन रिसीट ऑफ द रिटर्न, अब रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई उस फर्म की या मेंबर की, ठीक है। द डायरेक्टर डिसिप्लिन शैल सेंड ए कॉपी देयरऑफ टू द कंप्लेनेंट और द इन्फॉर्मेंट। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट आई इसकी कॉपी किसको भेजी जाएगी, कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को, एज द केस में भी, एंड द कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट शैल विद इन 21 डेज सबमिट हिज रिजॉइंडर। तो वो जो कंप्लेनेंट है या जो इन्फॉर्मेंट है वो अपना रिजॉइंडर देगा इस पर 21 दिन के अंदर, ठीक है। अपॉन रिसीट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड रिजॉइंडर, अब आप ये देखिए कि जो 21 दिन का टाइम है, जो कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट है उसको सिर्फ 21 दिन का ही टाइम दिया गया, उसको 21 दिन के बाद में एक्सटेंशन नहीं है। जैसे कि उसको जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है उसको 21 दिन और भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कंप्लेनेंट है या इन्फॉर्मेंट है उसको एक ही बार 21 दिन का टाइम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अपॉन रिसीट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3 एंड रिजॉइंडर अंडर सबसेक्शन 4, द डायरेक्टर डिसिप्लिन शैल सबमिट ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनानी है विद इन 30 डेज कि भाई प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता, ठीक है। अगर प्राइमा फेसी केस बनता है फॉर एनी प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, ठीक है, भाई दो शेड्यूल है हमारे, फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल। अगर वो कहता है कि भाई प्राइमा फेसी केस बनता है फर्स्ट शेड्यूल में, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन क्या करेगा, अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, ठीक है। और अगर सेकंड शेड्यूल में बनता है या दोनों शेड्यूल में बनता है, ठीक है, तो अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देगा ये डिसिप्लिनरी कमेटी को, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि अपनी ये जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है अपनी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इसने किसको देनी। अगर फर्स्ट शेड्यूल का केस है तो ये जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, ठीक है। और अगर सेकंड शेड्यूल का केस है या दोनों शेड्यूल का केस है फर्स्ट और सेकंड, तो ये जाएगा आपका डिसिप्लिनरी कमेटी को, ठीक। और डिसिप्लिनरी कमेटी का हमने देख ही लिया कि डिसिप्लिनरी कमेटी में नॉन सीएस की मेजॉरिटी है, और डिसिप्लिनरी कमेटी भी वो बेसिकली, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर भी हो सकते हैं, और कोई पैनल ऑफ एमिनेंट सीएस से भी वहां पर डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ए कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन
फाइल्ड बाय एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई है। ये क्या कहा कि अगर जो कंप्लेनेंट है या जो इंफॉर्मेशन है कि ये किसने दी है, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ड्यूली सपोर्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट along with supporting evidence shall be treated as preliminary examination report। ठीक है, तो अगर कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की रिपोर्ट लगी हुई है जिसमें एविडेंस भी है, तो इसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मान लिया जाएगा। तो ये जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाला पूरे वर्किंग करनी है ना, वो करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, मतलब अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने किया तो उसको फिर नहीं कहेंगे ना कि भाई तुम दोबारा इस पे अपना कुछ कहो। ठीक है, तो उसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा 21 दिन 21 दिन फिर 21 दिन, ये सब खत्म। इसको सीधा आपको कहां भेजना है, देखना है फर्स्ट शेड्यूल का केस है या सेकंड शेड्यूल का। फर्स्ट शेड्यूल है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल दोनों है या सेकंड शेड्यूल है तो डिसिप्लिनरी कमेटी को। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये सीधा फर्स्ट शेड्यूल देख लेगा कौन से शेड्यूल में केस फॉलो करता है, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी को ये केस चला जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where no prima facie case is made out against the member or the firm, the director discipline shall submit such information or complaint with relevant document to the board of discipline, and the board of discipline may, if it agrees with the findings of the director discipline, close the matter, or in case of disagreement itself proceed further or refer the matter to disciplinary committee or advise the director discipline to further investigate the matter। ठीक है, ये जो प्रोवाइडेड फर्दर है, ये प्रोवाइडेड फर्दर आपका प्रोवाइजो के साथ ही है। ठीक है, तो प्रोवाइजो में क्या कहा गया, प्रोवाइजो में कहा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी की या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की कोई रिपोर्ट है तो उसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट तो मान लिया, लेकिन इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि भाई कोई प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टर डिसिप्लिन क्या करेगा, डायरेक्टर डिसिप्लिन जो है ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को दे देगा। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या तो एग्री कर सकता है डायरेक्टर डिसिप्लिन की फाइंडिंग्स के साथ या नहीं कर सकता। तो उस केस में वो क्या करेगा, या तो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज देगा या डायरेक्टर डिसिप्लिन को कहेगा कि भाई और फर्दर इन्वेस्टिगेट करो इसमें। ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट द डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट shall follow such procedure as may be specified। ठीक है, तो उसके लिए हमारे रेगुलेशंस वगैरह आ जाएंगे, तो वहां पर जो है ये प्रोसीजर उसके अंदर दे दिया है। A complaint filed with the disciplinary directorate shall not be withdrawn under any circumstances। तो जो कंप्लेंट फाइल हो गई डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के साथ, ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में विड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, और जो स्टेटस है एक्शनेबल इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट्स pending before the disciplinary directorate, board of discipline, disciplinary committee, and the orders passed by the board of discipline under section 21A and by the disciplinary committee under section 21B shall be made available in the public domain by the disciplinary directorate in such manner as be prescribed। तो उसके लिए रूल्स आएंगे कि भाई ये जो जितनी भी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है या जो कंप्लेंट्स हैं ये पेंडिंग किस लेवल पे है, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास पेंडिंग है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास पेंडिंग है या डिसिप्लिनरी कमेटी में है, और जो ऑर्डर क्या पास किया बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने या डिसिप्लिनरी कमेटी ने, ये पब्लिक डोमेन में आएगा। ठीक है, और कैसे डिस्प्ले होगा ये बताएंगे थ्रू रूल्स। For section 21A of the Principal Act, the following section shall be constituted। अब ये 21A जो है 21 में भी कुछ नया प्रोविजन लाए हैं। इसमें क्या कहा गया कि भाई एक या एक से ज्यादा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आप बना सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में मेंबर कौन कौन से रहेंगे ये बता रहा है। सीए नहीं होना चाहिए, नॉन सीए होना चाहिए।
A person not being a member of the institute with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession to be nominated by the central government as its presiding officer from out of a panel of persons prepared and provided by the council in such manner as may be prescribed. मतलब वो कह रहा है पैनल भी आप ही बना के दो, पैनल काउंसिल को कह रहा है तुम बना के दो, उस पैनल में से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वो पैनल कहां से बना के देगी काउंसिल, क्योंकि वो सीए तो है ही नहीं बंदा, ठीक है, वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट नहीं है, और उसको एक्सपीरियंस ऑफ लॉ होना चाहिए और डिसिप्लिनरी मैटर्स की नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम आउट ऑफ पैनल ऑफ पर्संस प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक। रूल्स बनाएंगे उसके लिए, रूल्स में बेसिकली वो क्वालिफिकेशन वगैरह दे देंगे कि भाई रिटायर्ड जज होगा जैसे हाई कोर्ट का, या एडवोकेट होगा, इस तरह से वो ऐसा कुछ बनाएंगे उसमें। वन मेंबर हु इज ए पर्सन ऑफ एमिनेंस, ठीक है, having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy and not being a member of the institute, ये भी मेंबर नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, प्रिजाइडिंग अफसर, जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो नॉन सीए होगा। ये किसकी बात हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक आदमी रहेगा जो पर्सन ऑफ एमिनेंस होगा, हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, finance or accountancy and not being a member of the institute to be nominated by the central government from out of a panel of persons prepared and provided by the council। मतलब ये भी तुम ही बताओ, and provided by the council and such रूल्स बना देंगे, रूल्स गवर्नमेंट बना देगी, रूल्स के हिसाब से पैनल में कौन बनाएगा, पैनल बनाएगा काउंसिल, और उसके बीच में से ये सेलेक्ट करेंगे एक मेंबर। ये भी जो है सीए नहीं होगा। अगला, वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अमाउंट ऑफ ए पैनल ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल। तो एक पैनल बनाएंगे। पहले क्या होता था, जो इलेक्टेड मेंबर होते थे ना वही इसके मेंबर बन जाते थे, अब ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा पैनल बना लो, पैनल मतलब कोई इलेक्टेड मेंबर भी हो सकता है और नॉन इलेक्टेड मेंबर भी इसमें हो सकता है, ठीक है। एन ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट not below the rank of a deputy secretary shall function as a secretary of the board of discipline, ठीक है। जो एक ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा जो डिप्टी सेक्रेटरी से कम के रैंक का नहीं होगा, वो सेक्रेटरी बन जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज ए एंड द मेंबर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी may be the same for different boards of discipline constituted under this subsection। मतलब कई बार एक से ज्यादा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाने, ठीक है ना। तो ये जो प्रिजाइडिंग अफसर या जो अपना मेंबर है ये सेम भी हो सकता है, ठीक है। मान लो चार बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाए तो चारों बोर्ड में सेम मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन shall while considering the cases placed before it follow such procedure including faceless proceedings and virtual hearings as may be specified। तो उसमें फेसलेस हियरिंग भी हो सकती है, फेसलेस प्रोसीडिंग भी हो सकती है और वर्चुअल हियरिंग भी हो सकती है। द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन शैल ऑन रिसीट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टर डिसिप्लिन, ठीक है। डायरेक्टर डिसिप्लिन ने अपनी रिपोर्ट कहाँ देनी है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। ये क्या करेगा, ये मेंबर से मांगेगा इंफॉर्मेशन, require the member or the firm as the case may be against whom such preliminary examination report has been filed to submit a written statement। 21 दिन का टाइम मिलेगा और 21 दिन और एक्सटेंड हो सकता है, उसके लिए रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले कंप्लेंट आई किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास, ठीक है। डायरेक्टर डिसिप्लिन ने क्या किया, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया, उसके बाद बोर्ड के पास गई, ठीक है। बोर्ड के पास जब आ गई कि भाई प्रिलिमिनरी तो गिल्टी है, ठीक है ना, तो प्रिलिमिनरी गिल्टी है तो उस केस में क्या होगा भाई, अगर शेड्यूल 2 है तो डिसिप्लिनरी कमेटी में चली जाती है, या शेड्यूल 1 और 2 का। अगर शेड्यूल 1 का है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाती है, ठीक है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 21 दिन का उसको टाइम देंगे मेंबर या फर्म को जिसके किस पे कंप्लेंट आई है, और इसको 21 दिन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन शैल कंक्लूड इट्स इंक्वायरी विद इन 90 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ। इसके पास इसके ऊपर भी लिमिटेशन लगा दी कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो है अपनी इंक्वायरी 90 डेज में कंप्लीट करे, ठीक है, जब इसके पास ये रिपोर्ट आ गई तो, ठीक है। अपॉन इंक्वायरी if the board of discipline finds that such member is guilty of a professional or misconduct first schedule, ठीक है, अगर फर्स्ट शेड्यूल का गिल्टी है तो क्या होगा,
30 दिन के अंदर अपना उसको एक ऑर्डर पास करना है विद इन 30 डेज ऑफ सच फाइंडिंग। उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द मेंबर टेकिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। ये मेंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने इंक्वायरी की और उसको लगता है कि मेंबर गिल्टी है प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का, जो फर्स्ट शेड्यूल में, तो ये क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा मेंबर को। उसमें क्या रहेगा, उसको रिप्रीमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि भैया आगे से खबरदार रहना, आगे से ध्यान रखना, एंड रिकॉर्ड इट इन द रजिस्टर, और इसकी एंट्री कर देंगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या उसका नाम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव द नेम ऑफ द मेंबर और मेंबर्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक इसका जो है आप नाम रिमूव कर सकते हो, या इम्पोज सच फाइन एज इट मे थिंक फिट विच वे एक्सटेंड टू 2 लाख रुपए, या 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। अगला, where on the basis of evidence brought on record or during the course of an inquiry pertaining to a member, the Board of Discipline is of the opinion that any such member who is partner or owner of a firm has been repeatedly found guilty. अब ये क्या है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार गिल्टी हो रहा है, बार बार ही इज बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, फर्स्ट शेड्यूल का ही, लास्ट 5 इयर्स में। भाई पहले भी एक बार कंप्लेंट आ चुकी, पिछले 5 सालों में दोबारा अब कंप्लेंट आ गई, तो उस केस में क्या होगा, इस फर्म को भी प्रोहिबिट किया जा सकता है। अगर किसी फर्म का पार्टनर या जो ओनर ऑफ फर्म है वो रिपीटेडली ही इज फाउंड गिल्टी, तो उस केस में फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन लेंगे। प्रोहिबिट द फर्म फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी एक्टिविटी और एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द प्रोफेशन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए उस फर्म को बार कर सकते हैं, या इम्पोज सच फाइन एज इट मे थिंक फिट विच मे एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज, या 25 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। किस पर लगाएंगे, फर्म पर। वेयर ए मेंबर और ए फर्म फेल्स टू पे द फाइन इम्पोज, अब वो कहते हैं मेरे पास तो है ही नहीं जी, ये जो आपने फाइन बताया, पहले आपने बताया 2 लाख रुपए और यहाँ बता दिया फर्म के अगेंस्ट में 25 लाख रुपए, मेरे पास तो नहीं है जी इतने पैसे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो उसका क्या करेंगे, वो नाम रिमूव कर देंगे ऑफ द सच मेंबर और फर्म फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर और रजिस्टर ऑफ फर्म्स एज द केस मे फॉर सच पीरियड एज इट मे थिंक फिट, ठीक। अगर वो उस उतने पीरियड में फाइन नहीं देता, ठीक है, भाई टाइम देखे ना, भाई आप इतने दिन के अंदर फाइन जमा कराओ, अगर वो फाइन नहीं देता तो उसका नाम हटा देंगे। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन शैल बी पेड सच अलाउंसेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये रूल्स में आएगा, रूल्स में बताएंगे जो प्रिजाइडिंग अफसर है या जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है उनको क्या अलाउंसेस दिए जाने। अच्छा, अब सेक्शन 22B, सेक्शन 22B में भी चेंज है। फॉर सेक्शन 21B of the Principal Act, the following section shall be substituted. अब यह बात आ गई डिसिप्लिनरी कमेटी की, ठीक है। तो जैसे कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे ही जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकती है। पहला, प्रिजाइडिंग अफसर कौन होगा, नॉन सीए होगा, ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession, to be nominated by the central government as its presiding officer from out of a panel of persons prepared and provided by the council in such manner as may be prescribed। रूल्स आ जाएंगे इसके लिए। रूल्स में पैनल बनाएगा, पैनल कौन बनाएगा, काउंसिल बनाएगा। काउंसिल किस हिसाब से पैनल बनाएगी वो रूल्स में आएगा, ठीक है। उसमें क्वालिफिकेशंस वगैरह नेचुरली प्रेस्क्राइब करेगी। लेकिन ये है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, ना तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का भी प्रिजाइडिंग अफसर नॉन सीए होगा और इसमें भी जो है वो नॉन सीए, नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। 2 members who are persons of eminence having experience in the field of law, 2 आदमी और इसमें रहेंगे जिसके पास लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस या अकाउंटेंसी, एंड नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप ये बात अब देखें जरा ध्यान से कि यहाँ पर जो मेंबर है, मेंबर की भी बात कर रहा है कि भाई ये जो 2 मेंबर है ये भी नॉट बीइंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर देखें बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में, यहाँ पर नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, हाँ यहाँ पर भी है, दोनों में ही है, इसमें भी है, प्रिजाइडिंग अफसर भी और जो मेंबर है वो भी नॉट बीइंग ए मेंबर है, बी में भी, ठीक है। तो वहां पर भी सेम है।
ये भी पैनल मेंटेन होगा। पैनल कौन मेंटेन करेगा? प्रिपेयर एंड प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल, ठीक है। और उसके लिए रूल्स आ जाएगी, 2 members to be nominated by the council from out of a panel of members of the institute। 2 मेंबर जो है, पहला ये जो प्रिजाइडिंग अफसर है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। ये वाला ये नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिजाइडिंग अफसर, ठीक है। 2 मेंबर जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 2 मेंबर नॉमिनेट करेगी काउंसिल, वो कहां से? आउट ऑफ पैनल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग अफसर नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज ए and the members nominated under clause B may be the same for different disciplinary committees। तो जैसे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में है, ऐसे ही जो डिसिप्लिनरी कमिटीज है वहां पर भी वही है कि डिसिप्लिनरी कमिटीज में भी जो प्रिजाइडिंग अफसर है या जो मेंबर्स नॉमिनेटेड है अंडर क्लॉज बी, जो नॉट बीइंग मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, ये मान लो 4 आपने डिसिप्लिनरी कमिटीज बना दी, तो चारों में सेम भी रह सकता है, ठीक है। द डिसिप्लिनरी कमेटी shall while considering the cases placed before it follow such procedure including faceless, तो faceless भी हो सकती हैं और virtual proceedings भी हो सकती हैं। The disciplinary committee shall on receipt of preliminary examination from director discipline require the member, ठीक है। तो उस केस में जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, डायरेक्टर डिसिप्लिन से रिपोर्ट आ जाएगी और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है ना, तो उसमें फिर उससे रिटर्न स्टेटमेंट मांगी जाएगी, ठीक है। किससे? मेंबर से या फर्म से 21 दिन के अंदर, और वो 21 दिन एक्स्ट्रा, मतलब दोनों का सेम प्रोसीजर। जैसे हमने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का पढ़ा, ऐसे ही ये डिसिप्लिनरी कमेटी का है, वो 21 दिन और 21 दिन। दी डिसिप्लिनरी कमेटी, फर्क क्या है? फर्क यही है कि अगर फर्स्ट शेड्यूल का है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जा रहा है, और दोनों शेड्यूल का है, फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल का, या सिर्फ सेकंड शेड्यूल का है जिसमें ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस है, तो उस केस में वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जा रहा है। फर्क इतना ही, ठीक है। द डिसिप्लिनरी कमेटी, सिर्फ उनका कंपोजिशन चेंज कर दिया, चीजें पहले भी वैसे ही। द डिसिप्लिनरी कमेटी शैल कंक्लूड इट्स इंक्वायरी विद इन 180 डेज। तो यहाँ पर इनको टाइम दिया 180 दिन का, वहां पर कितना टाइम था? 90 डेज का था, ठीक है। अपॉन इंक्वायरी इफ द डिसिप्लिनरी कमेटी फाइंड्स दैट ए मेंबर इज गिल्टी, ठीक है। अब वो सेकंड शेड्यूल का गिल्टी है या फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल दोनों का गिल्टी है, तो वो क्या करेगी? 30 दिन के अंदर एक ऑर्डर पास कर देगी, और आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द मेंबर, ठीक है। और एक्शन क्या लेनी? वही एक्शन लेनी जैसे वहां पर था। यहाँ पर भी रिप्रीमेंट द मेंबर हो सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, उसका नेम रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है ये फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए तक का। तो ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, ये 10 लाख रुपए तक का फाइन है, और वहां पर कितना था? वहां 2 लाख रुपए था, ठीक है। वेयर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस brought on record or during the course of an inquiry pertaining to a member, the disciplinary committee is of the opinion that any such member, अब ये वो फिर फर्म को भी यहाँ पर लपेट लिया, तो उन्होंने देखा कि भाई अगर ये ऐसा मेंबर है, ठीक है, जो किसी फर्म का पार्टनर है, और इन्होंने क्या किया है, पिछले 5 साल में पहले भी इसने ये काम किया था, तो उस केस में उस फर्म को प्रोहिबिट कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल तक के लिए प्रोहिबिट कर सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट में हम वहां देखें, वहां पर कितना था? जैसे यहाँ 2 साल है, यहाँ पर था 1 साल, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है वहां पर 1 साल के लिए प्रोहिबिशन है, और यहाँ पर कितना है? अगर सेकंड शेड्यूल में पाया गया तो 2 साल का फर्म के अगेंस्ट में, ठीक है। अच्छा, और सस्पेंड और मतलब डबल, सस्पेंड और कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म एंड रिमूव इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो फर्म रजिस्टर ऑफ फर्म से उसका नाम भी रिमूव कर सकते हैं, और पेनल्टी इसमें लग सकती है कितनी? 50 लाख। वहां पर कितनी पेनल्टी थी? 25 लाख, ठीक है, जस्ट डबल। जैसे वहां पर 1 साल के लिए रिमूव कर सकते हैं फर्म का नाम, यहाँ पर 2 साल के लिए। तो पहले क्या होता था? आज तक फर्म के अगेंस्ट में एक्शन नहीं होता था, सिर्फ मेंबर के अगेंस्ट में एक्शन होता था। अब ये फर्म के अगेंस्ट में भी एक्शन हो जाएगा। फर्म के अगेंस्ट में एक्शन कब होगा? अगर पिछले 5 साल में एक ही बंदा, ठीक है, एनी सच मेंबर हु इज ए पार्टनर और ओनर ऑफ ए फर्म हैज बीन रिपीटेडली फाउंड। इसका ये भी मतलब है, अब वैसे तो इंटरप्रिटेशन बाद में आएगा, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अगर सेम बंदा गिल्टी पाया गया, ठीक है, वो ये कहता है कि एनी सच मेंबर हु इज ए पार्टनर और ओनर ऑफ ए फर्म। अब ये भी हो सकता है कि फर्म में कोई भी पार्टनर, अगर मान लो फर्म में पहले पार्टनर ए गिल्टी था, अब पार्टनर बी गिल्टी है, तो भी एक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बात करता है हु इज ए पार्टनर और ओनर ऑफ ए फर्म।
हैज बीन रिपीटेडली, तो पार्टनर में ये सेम पार्टनर नहीं कह रहा, पार्टनर हो सकता है पहले ए गिल्टी था अब बी गिल्टी, तो उस केस में भी क्या होगा कि 50 लाख रुपए तक का फाइन है और 2 साल तक के लिए उसकी मेंबरशिप उस फर्म को ही रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। ठीक है, वेयर ए मेंबर और ए फर्म फेल्स टू पे द फाइन, अब मान लो फाइन दे ही नहीं पाया 50 लाख रुपए का, तो उस केस में क्या होगा, काउंसिल शैल रिमूव द नेम ऑफ सच मेंबर और फर्म फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो ये यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, और इनके जो अलाउंसेस हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर, तो ये दोनों चीजें आप कंबाइन करके पढ़ सकते हो, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी। ठीक है, अब सेक्शन 21 में जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑमिट हो गई, सेक्शन 21D और पढ़ लेते हैं। सेक्शन 21D क्या कहता है? सेक्शन 21D कहता है कि जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो इंक्वायरी है पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी और एनी रेफरेंस और अपील फाइल्ड बिफोर द एपीलेट अथॉरिटी और बिफोर ए हाई कोर्ट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले जो भी इंक्वायरीज पेंडिंग थी, ठीक है, उनका क्या होगा, उसमें ये होगा, ये पुराने प्रोविजन से चलती रहेगी, shall continue to be governed by the provisions of this act as if this act had not been amended। ठीक है, तो उस पे ये अमेंडमेंट का इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि पुराने वाले जो थे उन पे पुराने वाले ही प्रोविजन लागू रहेंगे और जो नए वाले हैं उन पर नए वाले लागू रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि जब ये नया एक्ट आ जाएगा, जब ये अमेंडमेंट आ जाएगी, अमेंडमेंट आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी वगैरह का कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके हिसाब से नए के हिसाब से हो जाएगा, तो क्या दो डबल डबल कमेटी चलेगी, वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि वो ये कहता है ये तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे ये अमेंडमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो नए नए आ गए हमारे, तो कंपोजिशन ऑफ कमेटी क्या डबल डबल चलेंगी, वो भी एक क्वेश्चन है। ये सब चीजें तो जब प्रैक्टिकली आएंगी तब पता चलेगा। फॉर सेक्शन 22 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो सेक्शन 22 में क्या कहा, सेक्शन 22 में कहा कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट shall be deemed to include an act or omission on the part of any member of the institute either in his individual capacity ये एक नई चीज है, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो एक्ट या ओमिशन, या एज पार्टनर हो या ओनर ऑफ फर्म। ठीक है, एज मेंशन्ड इन एनी ऑफ द शेड्यूल्स, but nothing in this section shall be construed to limit or abridge in any way the powers conferred or duty cast upon the director discipline to inquire into the conduct of such member or firm under any other circumstances। ठीक है, तो फर्म के अगेंस्ट में भी और मेंबर के अगेंस्ट में भी एक्शन हो सकता है। ठीक है, उसमें एक्ट भी हो सकता है, कोई ओमिशन भी हो सकता है, मान लो जो आपको करना था वो आपने नहीं किया, वो ओमिशन है। ठीक है, इन सेक्शन 22 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन सबसेक्शन 1 any member of the institute were a firm or a firm shall be inserted, तो मेंबर और फर्म दोनों को इसमें ले आए डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। ठीक है, और इम्पोजिंग ऑन हिम की बजाय इम्पोजिंग ऑन सच मेंबर और फर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई कम्युनिकेटेड टू हिम जहां था, कम्युनिकेटेड टू सच मेंबर और फर्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फर्म और मेंबर दोनों को ला रहे हैं। अब ये भी देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स ए पर्सन हु वाज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन द डेट ऑफ alleged misconduct although he has ceased to be a member of the institute at the time of inquiry। ऐसा भी हो सकता है उसने मेंबरशिप सरेंडर कर दी हो। ठीक है, आपको मेंबरशिप कब देखनी है, ऑन द डेट ऑफ alleged misconduct। ठीक है, बाद में उसने मान लो अपना मेंबरशिप सरेंडर कर दिया, तो भी उसके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। A firm registered with the institute shall also be held liable for misconduct of a member who was its partner or owner on the date of the alleged misconduct। ठीक है, बाद में वो मेंबर नहीं रहा तो भी फर्म का छुटकारा नहीं होगा। ठीक है, तो फर्म भी लायबल होगी उस मेंबर के कंडक्ट के लिए जो एट द टाइम ऑफ मिसकंडक्ट वो मेंबर था, चाहे वो अब मेंबर है या नहीं। ठीक है, no action under the provisions of this chapter shall bar a central government department or state government or any statutory authority or rebel to take action against a member or firm registered with the institute under any other law for the time being in force।
ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो किसी भी मेंबर या फर्म के अगेंस्ट जो रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट है अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिगिंग, तो उसमें भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर फर्म ये रजिस्टर्ड नहीं है, मेंबर किसी और लॉ में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वहां पर भी एक्शन हो सकता है। इन सेक्शन 20 ये 1000 की बजाय ये 1 लाख हो गई है, 5000 की बजाय 5 लाख रुपीज हो गई, पेनल्टीज वगैरह में इंक्रीज हो गई है, पुरानी पेनल्टीज थी। ठीक है, देखो खास बात नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे पनिशेबल विद फाइन था 24 में, तो 24A में जो पनिशेबल विद फाइन था फर्स्ट कन्विक्शन में 1000 रुपीज होता था, अब इसको कर दिया पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 लाख रुपए तक का हो सकता है, और विद बोथ ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ठीक है, तो आप पेनल्टीज में भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो 6 मंथ्स था या फाइन था 5000 रुपीज का, 6 मंथ्स को कर दिया 1 ईयर, और फाइन जो था 5000 रुपीज इसको कर दिया 2 लाख रुपीज। ठीक है, और ये 10 लाख रुपए तक हो सकता है। तो पेनल्टीज में भी जहां जहां भी पेनल्टीज थी तो काफी ज्यादा पेनल्टीज इन्होंने कर दी। अब जो सेक्शन 28 है, सेक्शन 28 में क्लॉज सी के बाद इन्होंने ये क्लॉज और लगा दी, काउंसिल की ड्यूटी कर दी कि जो भी अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस है with various statutory and regulatory requirements by the members of the institute or firms noticed by it during the course of its reviews to the disciplinary directorate for its examination, ये disciplinary directorate को भेजे। ठीक है, अगर किसी मेंबर का या किसी फर्म का कोई नॉन कॉम्प्लायंस है विद वेरियस स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी डायरेक्टर डिसिप्लिन को भेजा जाएगा, डिसिप्लिन डायरेक्टरेट को। और देख लेते हैं कोई मेजर चीज है तो, वैसे मोटा मोटा मैंने काफी कवर कर लिया इसमें। ये तो फिर रजिस्टर वगैरह बनाने के बारे में है। इसके अलावा मैंने क्या किया है कि जो ये मेजर कैटेगरीज में जो चेंज आई, एक तो ओमिटेड है, कुछ एडिशंस है, कुछ सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बना दिया। ठीक है, जैसे पहले ये मेंबरशिप के बारे में होता था कि मेंबरशिप जो है वो 3000 थी, है ना, या विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 6000 तक हो सकती थी। उन्होंने कहा भाई ये हटाओ, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कहता है ना वो रजिस्टर है, रजिस्टर में आपने किसी मेंबरशिप देनी है, तो मेंबरशिप पहले होता था भाई 3000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, और अगर उससे ज्यादा करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा ये सब चीजें हटा दो, तो दोनों चीजें हटा दी, मेंबरशिप जितनी मर्जी लो, कोई दिक्कत। ठीक है, जो एसोसिएट है वो फेलो बनता था, 5000 रुपए कंडीशन थी, 5000 वाले कंडीशन भी इन्होंने हटा दी, जितना मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड था, ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया जैसे तड़ी पार हो जाता था पहले, अंडमान निकोबार भेज दिया, वो सब हटा दिया वर्ड ट्रांसपोर्टेशन, वो पुरानी चीजें थी 1949 के एक्ट में। ये फर्स्ट काउंसिल वाला जो प्रोविजन था ये हटा दिया, इसमें इसकी कोई रिटेंडेंट हो चुका है, इसको खास बात नहीं है। इसमें जो वर्ड था एक था लेवी एंड कलेक्शन, ठीक है ना, तो वर्ड एंड कलेक्शन जो है उसमें से हटा दिया। ये जो 5000 वाली कंडीशन थी हटा दी, मैंने बता दिया।